welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really great. So guys, has it ever happened with you all that there are some days that things go really smooth and really easy कि खुद को समझ नहीं आ रहा कि इतना आसानी से कैसे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, and then there are some days where you actually feel कि ये चीज़ को तो इतना टाइम देना बनता भी नहीं था, बट somewhere you end up giving 3-4 hours to just 3-4 pages where you know कि वो चीज़ को 15 से ज़्यादा मिनट का टाइम देने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी. So this actually happens a lot of times during the self study phase, जहाँ पे a lot of students keep on messaging me that mentally we feel we are somewhere else and physically we are just right in front of the books, and this is something which happens in self study phase because यहाँ पे कोई आपको बताने के लिए नहीं है that everything is on you totally. कोई प्रोफेसर नहीं है जो आपको बताएगा कि this is how you have to do, and this is the beauty of self study phase. I actually feel that you understand and you discover with yourself that these are the things that I need to focus and prioritize. So this is something which is casual and very normal. It happens almost day in day out, हर स्टूडेंट के साथ होता है. बट नाउ वी गोइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, बिकॉज इतना ज्यादा आप लोग ने मैसेज किया सेल्फ स्टडी को लेके. फर्स्टली मेंशन इन द कमेंट्स व्हाट अप्रोच यू गाइज एक्चुअली फॉलो, सो दैट मेरे को समझ में आए कैसे आप इतना ज्यादा बर्न आउट हो रहे हो, कैसे आपको लग रहा है कि इतना डालने के बाद भी इनपुट इतना नहीं आ पा रहा है मेरा. आई हैव पुट सो मेनी एफर्ट्स बट what desired output I actually thought I would get for the day I was not able to. Everything just message in the comments कि क्या problems आ रही है so that I clearly understand. So hello everybody, this is Angi Sangvi, and in case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any study updates. So basically these are some things which I personally feel are extremely important. देखो एक चीज समझ लो, for any exam, in case of any exam, if you really want to excel, कहीं ना कहीं क्लासेस ने पढ़ा दिया, आपको समझा दिया, बुक्स दे दिए, नोट्स दे दिया, मार्किंग से दिया, सब कर दिया. देयर जॉब इज डन देयर एंड देयर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज़ें अगर लिखनी है, याद करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़, एंड दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड डू इन योर सेल्फ स्टडी फेज. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल हाउ आई डिड, व्हाट ट्रिक्स एंड एवरीथिंग विच आई पर्सनली यूज्ड एंड विच आई फेल्ट is very effective, so that you clearly understand कि self study को लेके कैसे approach होना चाहिए. Trust me, 12 घंटे पढ़ना would also be very easy for you all if you understand certain things, how it deals with self study. One thing I personally feel before starting with any techniques or strategy is just figure out a particular time and a particular space which works for you. Space इसके लिए because when I used to study for 12-13 hours in a day, एक corner of the room was fixed. एक जगह पे ही जाके मैं बैठती थी. I didn't used to shift my places. In fact, even when I used to go to study library में भी वो corner एक fix था कि यहाँ पे ही पढ़ना है, because as such if you understand library का पूरा माहौल usually शांति रहता है. But this is one thing which I personally feel, even if you come around that space, कहीं ना कहीं खुद से एक self discipline आ जाता है and खुद से एक environment पूरा change हो जाता है कि now my entire focus is dedicated towards this one particular thing. Secondly, I told you right time, because a lot of times you guys keep on messaging me रात को पढ़ना चाहिए, दिन को पढ़ना चाहिए. Actually it does not matter. Bluntly अगर मैं आपको बताऊँ, honestly if I tell you, there is no particular time कि आपको अभी पढ़ना है. According to me, if it gives you output during the day, study during the day. If it gives you output during the night, तो रात को पढ़ो. But just understand that one thing that you have to follow today is something that you're going to follow for 2-3 months until your exams get over. तो जो आप अभी follow करे जा रहे हो उसको ही end तक करना, because otherwise your sleep pattern or cycle suffers a lot if you keep on shifting your रूटीन एंड स्केड्यूल. तो मेरे हिसाब से रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट माई मॉम ट्राइड अ लॉट कि तू सुबह ही उठ के पढ़, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़, बट सुबह उठना वॉज अ टास्क फॉर मी. जेन्युइनली मेरे लिए नहीं हो पाता था सुबह उठना. बट वही सेम चीज़ अगर आप मेरे को बोलोगे रात को तो 3 बजे तक पढ़, इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी. सो यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू. किसी का कॉपी करने का भी कोई जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू एंड देन अप्लाई इट फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. One particular technique which has worked a lot for me is I personally feel a lot of times when you are dealing just self study के phase में, जहाँ पे आप खुद ही पढ़ रहे हो, कोई बोलने वाला नहीं है, just try to inculcate this one thing which I personally feel. अगर आपने सोचा है कि ये टाइम से ये टाइम में मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ूंगा, कि 2:30 से 3:30 मेरा ये चैप्टर 6 खत्म हो गया, चलो चैप्टर खत्म हो गया, वेरी गुड. टेक 5 to 10 minutes after that, close your book and तभी का तभी just close your eyes and try to recall everything you studied in that chapter. At least नॉट एवरीथिंग स्पेसिफिकली, तो मोटा मोटा कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है,
कॉन्सेप्चुअली मेरे को सब समझा है, खुद को ये पूछो पहले तो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली आप याद ही कैसे रख पाओगे, ठीक है। इफ यू अंडरस्टूड इट कॉन्सेप्चुअली देन डोंट पुट योर सेल्फ इन अ प्रेशर कि मेरे को हर चीज ए एंड रट्टाफाई करना है, नहीं हो पाता है, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन सच अ वास्ट सॉर्ट ऑफ सिलेबस, नहीं हो पाता है। बट जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्सेप्ट्स थे, उसके अंदर मैंने कौन से कलर से कौन सी चीज को हाईलाइट किया है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो इन योर विजुअल मेमोरी इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। मेरे को एग्जाम में लिखते टाइम भी पेजेस दिखते थे कि दिस इज हाउ माई मॉड्यूल के पेजेस वर लुकिंग लाइक एंड देन आई यूज्ड टू राइट द आंसर। सो विजुअल मेमोरी ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। तो मेरे हिसाब से जस्ट इफ नॉट एनीथिंग हेडर और उसके अंदर के मेन हेडर क्या है, उसके अंदर के 3-4 कीवर्ड्स याद कर लो। बिकॉज सी वन थिंग विच आई पर्सनली फील, अकेले पढ़ रहे हो ना कहीं माइंड कहीं और चला गया, यू जस्ट फिजिकली देयर इन फ्रंट ऑफ द बुक्स, बट इफ यू ट्राई टू क्लोज दैट एंड अगर दिमाग पे जोर डाल रहे हो, एक्टिवली रिकॉल करने की ट्राई कर रहे हो, देन आई पर्सनली फील देयर इज नो चांस कि आपको नींद आएगी, देयर इज नो चांस कि कुछ और हो सकता है डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज यू आर एक्चुअली पुटिंग योर माइंड एंड योर बॉडी इज एक्टिवली इन्वॉल्व ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मेरे हिसाब से सिर्फ रिविजन करने से बेटर है ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू चेंज लिटिल बिट ऑफ द अप्रोच, बिकॉज ये एग्जाम में लिखनी है चीज है, आपको सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा। इफ यू वांट टू राइट थिंग्स यू हैव टू समवेयर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। इफ नॉट एवरीथिंग कीवर्ड्स तो याद करो, एटलीस्ट ट्राई टू रिकॉल। इफ नॉट रिकॉल नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, एक बार वापस देख लो, इट डज नॉट मैटर, यहाँ पे हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, बट दीज थिंग्स आई फील इन लॉन्ग रन ये 5-10 मिनट आपको सेकेंड रीड में बहुत बेनिफिट करेगा। सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील, रिविजन में सिर्फ रीड मत करो, ट्राई टू रिकॉल करोगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, तब जाके नींद भी नहीं आएगी और डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगे। This is one technique. Secondly, one thing which I personally feel is the Pareto principle, जिसमें वो 80-20 rule बता रहा है. So now this is very scientifically they've proven, but this is one thing which I had personally done a lot. सबसे पहले I personally feel that what they are trying to say here 80-20 rule में भी इज दैट 80% जो आपका होता है ना मार्किंग स्कीम, वो आपको सिर्फ 20% चैप्टर्स में से मिल सकता है। दीज आर दोज लुक्रेटिव चैप्टर्स विच आर गोइंग टू फेच यू मैक्सिमम मार्क्स। तो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जस्ट सिट विथ योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स देख लो एंड अंडरस्टैंड। इफ नॉट देन यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम स्कैनर्स वगैरह कि कौन से चैप्टर्स लुक्रेटिव है। आपको पढ़ाएंगे तभी भी प्रोफेसर्स बोलने वाले कि दीज आर चैप्टर्स विच आर गोइंग टू टेक मैक्सिमम वेटेज। सबसे पहले वो चैप्टर्स को निपटाओ हर सब्जेक्ट में से। इफ यू हैव 7 सब्जेक्ट्स, take out that 20% of the portion which is going to fetch you 80% of the marks, and trust me ये हर जगह होता है। if I give you for example कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट आप उठा लो, डायरेक्टर्स वाला चैप्टर हो गया, AGM EGM बोर्ड मीटिंग, all of these chapters are lucrative chapters, KMP वाला chapters, these chapters are going to form maximum weightage of your फाइनल पेपर। सो मेरे हिसाब से पहले आप ये चीज़ को फोकस करो कि ये चैप्टर्स कौन से हैं जिसमें कम मेहनत करके मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड ये जो बचा हुआ 20% ऑफ द पोर्शन है ना, वो बहुत वास्ट होता है एंड वहाँ पे से इतना शायद काफ़ी बार वो पूछते भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप पहले ये फोकस पे डालो कि कौन सी चीज़ों से मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं। सो फोकस ऑन दैट विच इज व्हाट आई पर्सनली फील। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन रेफर टू पास पेपर्स एंड अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम स्कोर कहाँ से बन सकता है। एंड ये पहले ही दिन ही बैठ के पूरा देख लो सिलेबस में कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे अच्छे से करना है। ईट द फ्रॉग में यही बोल रहे हैं, बेसिकली फ्रॉग ईट नहीं करना है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट टेक फर्स्ट द बिगर टास्क इन योर हैंड एंड द इम्पोर्टेंट वंस। लर्न टू प्रायोरिटाइज कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को जितना टाइम दोगे उतना टाइम कम ही होने वाला है। टाइम बॉक्सिंग करो, प्रायोरिटाइज करो एंड अंडरस्टैंड दैट पहले मुझे वो निपटाना है जिससे मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाला है। सो दिस इज वन स्ट्रेटजी विच हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर मी। वन थिंग विच आई फील दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प मी अलॉट इज स्पेस्ड रेपिटेशन करके भी एक चीज़ होती है। बेसिकली क्या होता है, बेसिक जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, आज अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी हो है, ठीक है, टेक एंड गिव योर सेल्फ लाइक अ 7 days का ब्रेक इफ एनीथिंग। पहले 3 दिन का ब्रेक लो, फिर 7 days का ब्रेक लो एंड फिर 1 महीने के बाद उस चीज़ को वापस रिवाइज करो। सो दैट अगर आज आपने पढ़ा है उसके बीच में 2 दिन में दूसरे सब्जेक्ट का गैप आ गया, देन ऑन द 3rd day यू आर अगेन रिवाइजिंग दीज सेम थिंग्स, तो आपका वापस फ्रेश हो गया। सो इट विल स्टे इन योर मेमोरी। देन आफ्टर 7 days इफ यू टेक इट विल बिकम फ्रेश। तो आप कभी भूल नहीं सकते ऐसे आसानी से चीज़ें। सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, थोड़े थोड़े गैप में जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको वापस पढ़ो। जब तक आप नहीं पढ़ोगे वो आपके दिमाग से सब वैनिश होते जाएगा और फिर आप जब 1-2 महीने के बाद वापस वो चीज़ लोगे, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है एज अ स्टूडेंट कि ये चीज़ मैं शायद पहली बार पढ़ रही हूँ, वैसा फील हो रहा है। सो टू अवॉइड दैट थिंग, मेक योर स्केड्यूल इन अ वे दैट यू हैव
स्लॉट्स अलोकेटेड इन योर टाइम टेबल जहाँ पे आप ये चीज़ों को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दो. सो वन थिंग विच आई फील इज समथिंग विच एवरीबडी शुड इनकलकेट. लास्टली व्हाट आई पर्सनली फील, अगर कोई चीज़ को 2 मिनट लग रही है ना, 2 मिनट से ज़्यादा कोई चीज़ को अगर नहीं लग रही है, वो तब भी का तब भी ही निपटा लो. डोंट पुट इट ऑन टू द लेटर थिंग्स कि चलो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करके करूँ. वो हार्डली 2 मिनट की चीज़ है. तो 2 मिनट रूल यही हमको बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ को 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लग रहा है, डू इट देन एंड देयर इटसेल्फ. जैसे कि मैंने आपको बोला 5 मिनट लगता है बेयरली सिर्फ वो चीज़ को रीड करने के लिए, रिकॉल करने के लिए. आपने अभी वो चैप्टर पढ़ा है, उसको रिकॉल करने में बेयरली यू विल टेक सम टाइम. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील. 2 मिनट रूल विच इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर कोई चीज़ को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट करने से बेटर है तब भी का तब भी ही फिनिश इट, सो दैट यू डोंट इवन हैव टू कैरी इट इन योर माइंड कि एक चीज़ पेंडिंग है. दिस इज वन थिंग. लास्टली व्हाट आई फील, अगर आपको समझ रहा है कि आपकी मेमोरी में विजुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करता है, तो फोकस ऑन मेकिंग माइंड मैप्स. माइंड मैप्स पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं. मैंने आपको बताया भी है कि माइंड मैप्स कैसे इफेक्टिवली आप बना सकते हो. बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में अगर आप ज़्यादा रिवाइज कर पा रहे हो तो आप दूसरी चीज़ों को भी फिर इंपॉर्टेंस दे सकते हो. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील. माइंड मैप बना लो. अगर कोई भी सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज इफ यू कंसिडर 18 चैप्टर्स आर देयर, अगर आप 5-6 का भी माइंड मैप बना लेते हो, एग्जाम के एक दिन पहले आप सिर्फ वो माइंड मैप से पूरी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, सारी कीवर्ड्स रिवाइज कर सकते हो. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील is going to help a lot. लास्ट एक टेक्निक मैंने जो पर्सनली यूज की थी इज whenever I used to feel that माइंड कहीं और जा रहा है, ठीक है, वन थिंग विच हेल्प मी लाइक एनीथिंग इज आई यूज टू स्टार्ट रीडिंग इट आउट लाउड. पहले तो जोर से पढ़ना चालू कर लो. इफ यू स्टार्ट टॉकिंग योर बॉडी इज इन्वॉल्व. नींद आने का कोई स्कोप नहीं है फिर. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील. एंड स्टार्ट टीचिंग टू योर सेल्फ ओनली एज इफ यू आर टीचिंग टू अ 5-year-old kid. लाइक दिस इज वन थिंग विच हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. बिकॉज अगर आप खुद को समझाने की कोशिश करते हो ना, यू विल अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी गैप्स इन योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. जब आप सिखाने की कोशिश करोगे, इफ नॉट एनीवन, ट्राई टीचिंग टू योर सेल्फ सो दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व. कहीं डिस्ट्रैक्शन का कोई स्कोप नहीं बचेगा. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मुझे लग रहा था मेरे को इतनी सारी चीज़ें याद है, बट मुझे याद नहीं है. मुझे एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली भी नहीं पता है कि ये चीज़ें एक्चुअली क्या बोलने की कोशिश कर रही है. यू विल फाइंड ऑल द गैप्स बाय योर सेल्फ ओनली. सो वन थिंग विच आई फील वर्क्स द बेस्ट इज स्टार्ट एंड ट्राई टू टीच योर सेल्फ ओन सेल्फ कि अच्छा ये चीज़ मैं ऐसे पढ़ाया था. और एकदम एक 5-year-old किड को आप कैसे समझाओगे, बस वैसे ही खुद को समझाने की कोशिश करो. एंड इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन टू योर सेल्फ, क्रैक्ड इट. यू क्रैक्ड दैट चैप्टर, दैट कॉन्सेप्ट वेरी थॉरली, वेरी नाइसली. यू विल नेवर फॉरगेट इट. खुद को समझा लिया तो यू विल नेवर फॉरगेट इट. सो दीज आर सम टेक्निक्स विच आई हैड पर्सनली यूज्ड. यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी और टेक्निक्स भी मेरे बहुत से वीडियोस में बताई थी, जैसे कि पास्ट पेपर्स पे आप कैसे फोकस कर सकते हो. पास्ट पेपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स. मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि मैंने पूरा एक रिवीजन लिया था सिर्फ पास्ट पेपर के सारे. इफ़ यू स्टिल हैव डाउट्स यू कैन वॉच टू दिस रीसेंट वीडियो वेयर आई एक्सप्लेन कि कैसे आप 30 से 40 मिनट में पूरा एक पास पेपर एक दिन में आप कवर कर सकते हो. सो दीज वर फ्यू ऑफ द टेक्निक्स विच वर पर्सनली यूज्ड बाय मी एंड विच आर साइंटिफिकली प्रूवन एंड टेस्टेड कि दिस इज हाउ योर बॉडी एंड ब्रेन रिस्पॉन्स. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील. सेल्फ स्टडी के टाइम पे यू कैन इनकलकेट दीज हैबिट्स इन योर सेल्फ एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ईजी. सो इफ यू हैव स्टिल एनी अदर डाउट्स, पहले तो आपका रूटीन में जो भी इश्यूज आ रहे हैं मेंशन इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट सो मच दैट इज कंसर्निंग यू अबाउट द सेल्फ स्टडी. अभी एक फेज ऐसा आ चुका है जहाँ पे बहुत कम टाइम बचा है एंड बेरली यू कैन मेक एनी एक्सक्यूज कि अभी मेरे से नहीं पढ़ाई हो पा रही है. 12-13 घंटा, 10 से 12 घंटा ऑन एन एवरेज तो हर कोई ऑनेस्टली देता ही है इफ दैट्स अ प्रोफेशनल लेवल ऑफ एग्जाम. सो दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील. ऐसे आप करोगे यू विल नॉट इवन बी बर्नड आउट इन द लॉन्ग रन एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील लाइट ओनली. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई हैव शेयर्ड ड्यूरिंग माई particularly study days what I had done, and I hope this video has helped you guys in some way or the other. If you still have any other doubts you can always mention in the comments. You can message me, DM कर सकते हो. But until then study well. I'll soon see you guys with another video. Bye bye.